भारोत्तोलन प्रतियोगिता पुरुषों के 81 किलो भार वर्ग का आज का मुकाबले यहां पर देखने को मिलेंगे। Next up, we have Abhishek Nipane representing Maharashtra, making an attempt of 131 kilos. And a successful attempt to begin with from Abhishek Nipane. वर्लू अजय बाबू मध्य प्रदेश के, जो कि 137 किलो भार उठाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने पहले प्रयास के लिए अग्रसर 137 किलो भार उठाने का उनका लक्ष्य। और ये प्रयास उनका सफलताओं में परिवर्तित हुआ। Back-to-back lifts, 142 kilograms on the bar. Third and final attempt in snatch. This is the men's 81 kilogram. Taking his time, getting his focus, and yes, does it with style. The confidence is back in Ajay Babu. अपने अगले प्रयास के लिए, तीसरे और अंतिम प्रयास के लिए, पहले प्रयास में 133, दूसरे प्रयास में 100। बिल्कुल सही लिफ्ट, इस लिफ्ट को पूर्ण अंजाम तक लेकर गए आज Abhishek Nipane. चुस्ती दुरुस्ती से पूर्ण कर पाने में कामयाब होते हैं। प्रथम चरण पूरा किया, बार को शोल्डर पर लिया। अब दूसरा चरण जर्क का उन्होंने पूर्ण कर लिया है। स्थिरता लानी बाकी है। नहीं, यह लिफ्ट उनकी अमान्य घोषित हुई है। Nitek Jangir, very, very satisfied. Already has won the gold medal. 317. Because he had a best of 138. Good lift. And a gold medal. Because he has a 4 kilogram advantage from snatch, carrying it into the total. 165 on the bar, done easily, looking good for at least 5 to 7 kilos more. Abhishek Nipane representing Maharashtra. Talo Taku was also from services. Total of 309 for Nipane. और रजत पदक विजेता बने हैं अजय बाबू, जो कि मध्य प्रदेश के हैं। हंसा मैम, जो कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित है, वह उनको पदक पहनाकर सम्मानित कर रही हैं। And the men's 81 kilograms class champion is Nitesh Jangir of Rajasthan in snatch, receiving the medal from Dronacharya Award winner Hansa Manral. Nitesh Jangir. Seven lifters who will be taking part in the women's 71 kilogram class. मणिपुर की लिफ्टर उमेश्वरी देवी, इन्होंने अपने दूसरे अटेम्प्ट में पूर्ण किया था। अब चुनौती कर रही हैं 85 किलो भार उठाने की। तीसरा और अंतिम प्रयास। अब 85 किलो भार उठाने का इनका लक्ष्य, ये चुनौती। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का जो उनका अनुभव है वो यहां पर साफ दिखता हुआ। एक अच्छा प्रयास, नई युवा खिलाड़ी। अब 87 किलो उनका लक्ष्य, 84। They're under pressure there, but eventually a good lift, and that lift would make all the Maharashtrians 88 kilograms to be lifted by Harjinder Kaur, representing Punjab. She was a picture of poise earlier on and looks very confident going into this third and final attempt.
बहुत ही सहजता के साथ इस लिफ्ट को पूर्ण अंजाम तक लेकर गई हैं हरजिंदर कौर और पायदान में सबसे ऊपर हो गई हैं पहली श्रृंखला में। Second attempt, 103 kilograms, and successfully lifting in her third attempt, looking to win gold. Up here we've got Piyumeshwari Devi from Manipur in the 105 kilogram category. She's lifted it up onto her shoulders. And down it goes, there we go. It's a good lift, Sanjeev. बिल्कुल 104 किलो भार इन्होंने उठाया है। Her first attempt. बिल्कुल पहले प्रयास में 103 किलो उठा पाने में नाकामयाब रही है, वो लिफ्ट उनकी अमान्य घोषित की गई और मगर अब देखना होगा क्या 103 किलो को सफलताओं में परिवर्तित करती हैं। दूसरे प्रयास में निर्णय आना विशेष है। ये जी हाँ, गुड लिफ्ट 103 किलो अपने दूसरे प्रयास में सफलताओं में परिवर्तित करने में कामयाब हुई है महाराष्ट्र की ये लिफ्टर। Now we have Harjinder Kaur coming back out. The experience of this player, having played and represented India and winning medals, as I said, in the Commonwealth Games. So bronze medal winner. And here she is with 113 kilograms successfully lifted. It is a good lift according to our referees out here. Harjinder Kaur. अन्य प्रतियोगिताओं की पदक विजेता हैं तो उनका जो खेल कौशल है वो काबिल तारीफ है और यहाँ पर सभी से गले लगती हुई पहले नंबर पर 201 किलो। Here we have the bronze medal being handed over to Piyumeshwari Devi. A round of applause for the lady from Manipur with a successful lift of 189 kilograms. Maharashtra winning the silver medal with 190 kilograms. What an achievement. These sports persons have been practicing day and night ferociously for these games, and it is a very proud moment for them. 37वें राष्ट्रीय खेलों की स्वर्ण पदक विजेता पंजाब की हरजिंदर कौर उठाकर कुल योग रहा इनका 201 किलो और दूसरी बार पदक विजेता बनी है ये राष्ट्रीय खेलों की। बहुत ही सुंदर उत्कृष्ट खेल कौशल इनका। We have the 8 players and participants ready in the 89 kilogram category. और यहाँ पर अमरजीत गुरु मनन चिंतन करते हुए अपने आप को पूरी तरह से एकाग्र करते हुए लंबी गहरी सांस और ये लिफ्ट करने में कामयाब हो गए हैं। 143 किलो की लिफ्ट, बहुत ही सुंदर उत्कृष्ट अतुल्य। तो अब ये 1 किलो की बढ़त करेंगे तभी क्लीन एंड जर्क में टक्कर दे पाएंगे सहजता से। दूसरे प्रयास में 141 किलो, पहले प्रयास में 137, दूसरे प्रयास में 141 और तीसरे और अंतिम प्रयास में 144 किलो उठा पाने में कामयाब हुए हैं। Amarjeet Guru, who was in silver medal contention, will be looking to go for gold. Here's Amarjeet going for his third and final one. 174 kilograms. And that declared as a good lift. And with that lift, 174 kilograms. Is something we will see in a few moments from now. And declared as a good lift. 174 kilograms, Marush. Final attempt, 79 kilograms is what he is trying. It hasn't been pulled off by anyone so far. Will Gaurav be the first person? He looks very determined to do so. He has time on his side. Oh, wow. Wow, that is fantastic. As you can see, a huge shot of joy and relief. We're just waiting on officials. The competition of
and they have said that is a clean. That is a clean, and of course with that we have our medal contenders coming out here. Gaurav winning gold with that. और पुरुषों का 89 किलो भार वर्ग में पुरस्कार वितरण समारोह। कांस्य पदक पर अपनी दक्षताएं दर्ज की हैं अमरजीत गुरु पंजाब के। Marush PS winning the silver medal representing the Services Sports Control Board. Well, on your screens, of course, being awarded the silver medal. चंडीगढ़ के गौरव जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है 37वें राष्ट्रीय खेल। इन्होंने क्लीन एंड जर्क में किया और कुल टोटल उनका रहा 319 किलो भार उठाकर ये स्वर्ण पदक विजेता बने हैं। गौरव ने, चंडीगढ़ के इस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। तीसरे प्लेस का खेल खेला जाएगा तेलंगाना और केरला के बीच में कंपालका इंडोर स्टेडियम गोवा का। विसल बज चुकी है और विसल के साथ दोनों टीम के खिलाड़ी, सेंटर के खिलाड़ी अपनी अपनी जगह लेते हुए, प्रवीण जो है और यहां पे बॉल को सेंटर कोर्ट में रखते हुए तैयार। और यहां पे विसल बज चुकी है। केरला की टीम के पास बॉल, सेंटर के खिलाड़ी पास देते हुए, और यहां पे ऑब्स्ट्रक्शन की कोशिश तेलंगाना की टीम, और यहां पे बिल्कुल गलती नहीं करेगी शिल्पा। कोशिश चल रही है तेलंगाना की टीम की। सेंटर के पास बॉल, तेलंगाना के सेंटर के खिलाड़ी नंदिनी यहां पे बॉल पास करते हुए, गोल डिफेंडर झांसी बॉल पास देते हुए गोल अटैकर के पास, फिर से एक बार झांसी के पास बॉल। झांसी यहां पे फिर से एक बार कोशिश में बॉल पास दे रही है। यहां पे सेंटर के पास बॉल, सेंटर से बॉल पास होते हुए गोल अटैकर के पास। कोशिश यहां पे रहेगी तेलंगाना की, बढ़त बनाने की कोशिश यहां पे जरूर रहेगी। और ब्रॉन्ज मेडल की यहां पे गेम शुरू है। दोनों टीमें एक अंक से बढ़त हासिल की है। केरला यहां पे फिर से एक बार कोशिश यहां पे सेंटर की, तेलंगाना की सेंटर बॉल पास करते हुए गोल अटैकर के पास, गोल शूटर यहां पे, माफ कीजिए, गोल अटैकर ने बहुत बढ़िया गोल यहां पे तेलंगाना के लिए किया है। तो साथ और मेरे साथी कमेंटेटर यहां पे मौजूद है आनंद। बहुत बढ़िया खेल चल रहा है आनंद यहां पे तेलंगाना और केरला के बीच में। पहले क्वार्टर की अगर बात करें तो तेलंगाना ने 6 अंक अर्जित किए थे और 7 अंक अर्जित किए थे केरला की टीम ने। और यहां पे फिर से एक बार दूसरे क्वार्टर का खेल शुरू। केरला कोशिश करती हुई खेल को बचाने की, और यहाँ पे शिल्पा तैयार, और शिल्पा ने बहुत बढ़िया नेट यहाँ पे किया हुआ है और इसी की बदौलत केरला 1 अंक से आ गया। और डिस्पोजेस हुए, टेक्निकल फाउल करार दिया गया। मौका बना है इस बार तेलंगाना के लिए, और यहाँ पर तेलंगाना ने भी बॉल लूज कर दिया। बहुत खूबसूरत ओवर द हेड पास, जब तक कि खिलाड़ी पहुंचते गोल हो गया। कांटे की टक्कर में केरल ने चौथे क्वार्टर में तो अपना दबदबा दिखाया। 6-3 रहा चौथे क्वार्टर का स्कोर केरल के पक्ष में, लेकिन मुकाबला हो गया है बराबर, 26-26 पर बराबरी। ऑफिशियल ये टाई ब्रेकर है। 1 मिनट ऐड किया गया है, 1 मिनट। चूंकि जो ट्रेडिशनल नेटबॉल होता है दिलीप, उसमें जो स्कोर कंबाइंड स्कोर टाई होता है तो संयुक्त विजेता घोषित किया जाता है। लेकिन फास्ट नेटबॉल के नियम, जो फास्ट 5 नेटबॉल के नियम हैं, वो थोड़े से अलग हैं। और यहां देखना है कि केरल बनाम तेलंगाना में विजेता कौन बनता है। शिल्पा को ओवर द हेड पास दिया गया। यहां पर मिड कोर्ट पर
खेल चल रहा है सेंटर सर्कल जो है उसके आसपास। शायद कंबाइंड विनर के लिए कोशिश, चूंकि टाई ब्रेकर में प्रयास देखने को नहीं मिले हैं। बहुत कम समय बाकी रह गया है, कुछ लम्हे इस मुकाबले के बाकी। ऑफिशियल रिजल्ट का हम अभी भी वेट कर रहे हैं। दोनों टीम के खिलाड़ी इकट्ठा होते हैं और हर्डल बनाते हैं और वहां पे बहुत जोर से आवाज किया जाता है, कोई कुछ घोषणाएं दी जाती है और जो खेल भावना है उसको जागृत करने की कोशिश दोनों टीमों के बीच में। और ये खेल भावना का परिचय है। तेलंगाना और केरल दोनों ही टीमों के खिलाड़ी एक कंबाइंड हर्डल बना रही हैं, क्योंकि विजेता दोनों को घोषित किया गया है। और खेल की जीत हुई है। जुड़ेंगे, जिएंगे, जीतेंगे। सेलिब्रेटिंग वननेस थ्रू स्पोर्ट्स। खेल के सहारे जो एकता का संदेश देने की पहल है इन राष्ट्रीय खेलों के जरिए। फाइनल है, बीती ताही बिसारती होगी गोवा ने, नए सिरे से ये मुकाबला खेलेगी। फिलहाल 3-12 से पिछड़ती हुई दूसरा क्वार्टर प्रारंभ हुआ है। हरियाणा के पास एक बार फिर बढ़िया पास रिसीव किया है, हालांकि अब अपने सपोर्ट को तलाशेंगे। यशस्वी सेंटर की भूमिका निभाया करते हैं गोल शूटर विशाल, और अब साहिल के पास 3 पॉइंटर का प्रयास कामयाब नहीं है, लेकिन पासिंग अच्छी है, अटैक अच्छा है, डिफेंस मजबूत है। हरियाणा एक कंप्लीट टीम है आनंद, इसमें कोई संदेह नहीं। और जिस ढंग से दबदबा बनाकर रखा है पिछले कुछ वर्षों में नेटबॉल में, वो बहुत लाजवाब है। गोवा की टीम टक्कर दे रही है। थ्री पॉइंटर की कोशिश है, लेकिन काफी दूर से प्रयास किया था वहां पर गोल शूटर ने, जो गोल शूटर की भूमिका निभा रहे हैं आकाश। आउटर सर्कल से प्रयास किया जा रहा है, इनर सर्कल में आए हैं। एक ही अंक मिलेगा इस समय और एक अंक से ही संतोष करना पड़ेगा आकाश को। क्या यहां पर 6 पॉइंटर टीम के कप्तान सन्मय लेकर आ रहे हैं? जी नहीं। एक बार बढ़िया प्लेइंग एरिया में रखने की कोशिश थी। घटते हुए सेकेंड, दिल की धड़कनें बढ़ा रहे हैं गोवा की, और 7 अंकों की लीड गोल्ड मेडल के करीब ले जा रही है हरियाणा को। 6 अंक की कोशिश है और इस 6 पॉइंटर ने इस मैच को लगभग हरियाणा के पक्ष में कर दिया है। 2 अंक आ गए हैं, लेकिन प्रशांत अब इस मुकाबले में सिर्फ औपचारिकताएं रह गई हैं, क्योंकि अब हरियाणा ने गोल्ड मेडल लगभग पक्का कर लिया है। 2 6 पॉइंटर कम से कम चाहिए इस मुकाबले में वापसी करने के लिए। सन्मय के पास बॉल है, 6 पॉइंटर के लिए जाएंगे समय लेते हुए, लेकिन समय ज्यादा हुआ, कहां फॉल्ट हुआ समझ में नहीं आया। हरियाणा के पास एक बार फिर बॉल पोजीशन, ये जो बाधा पहुंची है, चोट ना पहुंची हो, उम्मीद ये की जानी चाहिए। लेकिन तेजी, गर्माहट, फाइनल मुकाबला, सबसे बड़ा मैच, फास्ट 5 नेटबॉल स्पर्धा 37वें राष्ट्रीय खेलों की निर्णायक स्थिति में पहुंचती हुई चंद सेकंड बाकी है। हरियाणा के पास बॉल पोजीशन है, विशाल जा रहे हैं 6 पॉइंटर के लिए। पिछला 6 पॉइंटर काम करके गया था, अंतर पैदा कर गया था, जीत के बहुत करीब। नेशनल चैंपियन, राष्ट्रीय खेलों की चैंपियन बन गई है। इस विसल के साथ तय हुआ, हरियाणा ने पुरुष वर्ग का टाइटल भी अपने नाम किया है, गोल्ड मेडल जीता है, मेजबान गोवा को परास्त किया है। स्कोर 23-22 है, लेकिन आनंद इस मुकाबले में गोवा ने जबरदस्त टक्कर दी है, बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी गोवा की इस युवा टीम की भी, जिसने हरियाणा की इस दिग्गज टीम को टक्कर दी। एक समय दूसरे और तीसरे क्वार्टर में गोवा की टीम हावी नजर आ रही थी, लेकिन जब ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला काफी नजदीक जाएगा, तो उस समय जो 2 या 3 3 पॉइंटर आए थे हरियाणा की तरफ से, और उसमें अहम भूमिका निभाई थी साहिल ने,
वो जबरदस्त साबित हुआ। 33-22 के स्कोर के साथ हरियाणा ने गोवा को हराकर 37वें राष्ट्रीय खेलों में नेटबॉल फास्ट 5 स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर अब फाइनल मुकाबला होने वाला है महिलाओं का फास्ट 5 फाइनल नेटबॉल का, हरियाणा बनाम पंजाब। ये टक्कर बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि हरियाणा की टीम का दबदबा देखने को मिला है अब तक नेटबॉल में। जो ट्रेडिशनल नेटबॉल की प्रतियोगिता थी, टॉस होता हुआ इस समय लेफ्ट टू राइट पोजीशन जो है वो हरियाणा की टीम है, यानी जो ग्रे और काले रंग के पोशाक में, और पीले रंग की जो पोशाक में आप देख रहे हैं वो है पंजाब की टीम, राइट टू लेफ्ट खेल रही है। फाइनल मुकाबला फास्ट 5 नेटबॉल का गोल्ड मेडल मुकाबला शुरू होता हुआ यहां पर। बढ़िया पास, फ्लैंक चेंज करने की कोशिश, लेफ्ट फ्लैंक पर खेल चल रहा है। और पहला गोल करने का मौका मिल गया है यहां पर हरियाणा को, और कोई परेशानी नहीं हुई है। हरियाणा ने इस मुकाबले में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। पंजाब के पास एक मौका जरूर है, वहां पर हरमिंदर कौर, और हरमिंदर कौर का ये बढ़िया गोल। स्कोरर मनीषा आज मिक्स्ड फॉर्म में नजर आई हैं। 3 3 पॉइंटर के चांस मिस किए उन्होंने, और अभी अभी एक गोल भी मिस किया इस दूसरे क्वार्टर में। एक बार फिर प्रयास, पास किया है, और इस बार गोल अटैकर की भूमिका सुनीता ने राइट फ्लैंक पर। एक बार फिर कोशिश 6 पॉइंटर की, लेकिन मनीषा चूक गई। क्या एक और ट्राई करेंगी? जी हां, ट्राई किया है, एक और असफल प्रयास। रोमांच बढ़ सा गया है दिलीप इस पावर प्ले में। रोमांच तो बढ़ गया है, पर जो फासला है वो तो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 10 अंकों का फासला अभी भी है, और यहाँ पे 4 अंक की कोशिश हुई थी और मनीषा उसमें सक्सेस। पहले क्वार्टर में सिर्फ 2 अंक हासिल किए थे पंजाब की टीम ने, 10 अंक अर्जित किए थे हरियाणा की टीम ने। 14 अंक अर्जित किए क्वार्टर 2 में, और 8 अंक अर्जित किए पंजाब ने क्वार्टर 2 में। और अब हरियाणा के पास जब एक बार गेंद आ जाती है तो फिर बहुत मुश्किल है उन्हें डिस्पोजेस करना, और पंजाब ने एक अवसर गंवा दिया। गेंद उनके कब्जे में थी। 6 पॉइंटर के लिए ट्राई करना चाहती थी हरविंदर, लेकिन पहले कलेक्शन ही सही नहीं हो पाया। और अब हरियाणा, मनीषा पर नजर रखिएगा, 6 पॉइंटर के लिए जरूर जाएंगी। वहां डिस्पोजेस हुई थी, लेकिन हरविंदर फायदा नहीं उठा पाई। 2 मिनट से कम का समय बाकी रह गया है। क्या इस पावर प्ले में कुछ अलग, कुछ नया, कुछ अद्भुत करना पड़ेगा? फासला है 23 अंकों का। अगर 4 6 पॉइंटर आएंगे तब जाकर बात बनेगी। ये एक बढ़िया इंटरसेप्शन था। पावर प्ले, गेंद की पोजीशन को लूज किया, हरमिंदर को ढूंढना चाहती थी, थोड़ी सी थक गई हैं। थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज भी उनकी स्लो नजर आई है। मौका जरूर था, डिफ्लेक्ट हुई गेंद। पंजाब के पास ही पोजीशन रहेगा। हरमिंदर के पास मौका है, 3 पॉइंटर यानी 6 मिलेगा। जी नहीं दिलीप, अब सिर्फ औपचारिकताएं बाकी रह गई हैं इस मुकाबले में। सही कहा आपने, सिर्फ 15 सेकंड का खेल बाकी, और हरियाणा जो है वो विजेता घोषित किया जाएगा। हरियाणा की टीम हरियाणी स्वर्ण पदक पर अपने नाम जरूर लिखेगा। यहाँ पे फिर से एक बार अंक को आगे बढ़ाने की कोशिश, 2 अंक आगे बढ़े, और हरियाणा का यहाँ पे विजय रथ जो है पंजाब रोक नहीं पाई, और पंजाब को हरा के स्वर्ण पदक अपने नाम पे किया है हरियाणा ने। लाजवाब प्रदर्शन। हरियाणा की बेटियों ने एक बार फिर नेटबॉल में अपना परचम लहराया है। चाहे डिफेंस की बात करें, चाहे अटैक की बात करें, पासिंग एबिलिटीज की बात करें, कन्वर्जन की बात करें, या फिर डिफेंड की बात करें, इंटरसेप्शन की बात करें, खेल के हर एक पक्ष पर हरियाणा के इन खिलाड़ियों ने गजब का प्रदर्शन किया है।
जबरदस्त प्रदर्शन। और ये है पंजाब की टीम। और ये फाइनल स्कोर 10-2 पहले क्वार्टर में, 14-8 दूसरे क्वार्टर में, 10-3 तीसरे क्वार्टर में, और चौथे और अंतिम क्वार्टर में सबसे कम स्कोर हुआ 6-2 का, और टोटल स्कोर 40-15 के बड़े अंतर से हरियाणा ने पंजाब को करारी मात देते हुए फास्ट 5 नेटबॉल का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और अब इस समय गुजरात की ये टीम एरोबिक जिम्नास्टिक ग्रुप इवेंट का फाइनल अच्छा फ्लोट टर्न परफेक्शन दिखता हुआ और तालमेल दिखता हुआ इस जोड़ी के बीच में, लेकिन फिनिशिंग किस तरीके से करती है ये टीम देखना दिलचस्प होगा। ताल मिलाते हुए पैरों और हाथों को लगातार मूव करते हुए with a good chemistry. See this part, after holding that, they're in a good position. Look at that, how they're ending. J&K is performing the group aerobic gymnastic. Energetic start with a good balance. The competition, synchronization and coordination which is required, they are showing it. They are tracking every moment. A good split jump. Oh, something artistic we have seen. 1, 2, second backflip. They are into the last phase. They are creating some special vibe with their performance. Performing really good. Team Jammu and Kashmir. A good finish, the way they have started. Starting with the aerobics group category, the winner of the bronze medal, please put your hands together for Team Gujarat. I would request Mrs. Kavita Gopesh Naik to present the medals to the winners. And now, the winner of the silver medal, please put your hands together for Jammu and Kashmir. I would request Mrs. Kavita Naik to present the medals to the winners. For our gold medalists, let's give it up for Team Maharashtra.